السلام علیکم. وعلیکم السلام. ابھی یار ہم رستے میں تھے، اب دیکھا میں نے ابھی. اور سب ٹھیک ہے الحمدللہ. اور حضرت آپ خیریت سے ہیں؟ اللہ کرم. کیا کہاں پہ ہیں حضرت؟ سب اللہ کا شکر ہے حضرت. راجستھان کوٹا کے پاس میں ہیں. اچھا ماشاء اللہ. کیسا کچھ فرق پڑا کہ نہیں پڑا ماحول میں؟ حضرت بہت فرق پڑ گیا ہے کہ اچھا ماشاء اللہ. ہمارے علاقے میں تو بہت فرق ہے. اچھا. اور ہمارے علاقے میں تو الحمدللہ ابھی وہ قاری ابو ذر صاحب آئے تھے ہمارے یہاں. نوجوان ہیں وہ، مطلب لیٹ کر دیکھیں گے تو ان کی تلاوت ملے گی آپ کو. قاری ابو ذر. ہاں قاری ابو ذر صاحب. یہی سب بات کر رہے تھے. کہہ رہے دیکھو ماشاء اللہ اب ماحول بن رہے ہیں. لوگوں کے سمجھ میں آئی وہ حوالے جو دیے نا کتاب میں ترجمے کے فاضل بریلوی کے والد سے. جی 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 اس سے بہت لوگوں سمجھ میں آئی کہ تو ان کے والد کا بھی ترجمہ ہے. دیکھیے حضرت جیسے ان کے والد صاحب ہیں مولانا نقی علی صاحب، بڑے قابل عالم ہیں، بہت قابل عالم. اور وہ ہیں مطلب کہ تو پیر میر علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہیں وہاں پاکستان میں. وہ تو حاجی امداد اللہ صاحب کے خلیفہ تھے. جی جی جی. وہ پیر نصیر الدین نصیر کے شاید دادا تھے نا. اور یہ پیر نصیر الدین نصیر کو تو ان کے دادا پیر میر علی صاحب. پیر نصیر الدین نصیر سگے پوتے تھے ان کے شاید غالباً. جی جی جی. پوتے یا پڑ پوتے جو بھی. جی 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 جی. پوتے ہی ہوں گے، زیادہ ٹائم نہیں ہوا نا ان کو. وہ میر علی صاحب کو 80 سال ہو گئے. جی 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 جی. ہو سکتا ہے پڑپوتے ہوں گے. ہاں پڑپوتے. لیکن بہت غضب کے عالم تھے، بہت قابل تھے حضرت. توحید پرست تھے وہ. جی جی جی. وہ تو بزرگان دین سے ڈائریکٹ مانگنے کو منع کرتے تھے. وہی تو میں کہہ رہا ہوں توحید پرست تھے. انہوں نے ثابت کر دیا ہر طرح سے. ایسا پیر عالم شاید ابھی زمانے میں کھل کے نہیں ہے کوئی پاکستان میں. بہت مشکل ہے حضرت. نہیں ڈرتے ہیں روزی روٹی سے کہ ہماری روزی روٹی چل جائے گی. جی جی جی. اصل بات ہے کہ روزی روٹی جانے کا خطرہ رہتا ہے، اللہ پر بھروسہ نہیں. صحیح بات حضرت. سیدھے کہہ دو کہ اللہ کے ولیوں کے نیک وسیلے سے، ان کے نیک اعمال کے وسیلے سے دعا کریں اللہ سے، وہ تو اس میں کوئی حرج نہیں. جی جی. وسیلے کا کون انکار کرتا ہے حضرت؟ کوئی انکار نہیں کرتا. اب یہ وسیلے کا الٹا مطلب بتاتے ہیں کہ ڈائریکٹ انہیں سے مانگو. جی جی. پھر اللہ سے کیا مانگو گے؟ جی جی. وسیلے کا مطلب ہے کہ اولیاء کرام کے نیک اعمال کے وسیلے سے اللہ سے دعا کی. جی جی جی. اور سب سے پہلے جب وسیلہ لگا دیا جائے تو پھر اللہ کے رسول کا وسیلہ. جی جی. اور اللہ کے رسول کے وسیلے کے بعد پھر کسی کا نام نہ لیا جائے. جی جی. کیونکہ پھر وہ ادب کے خلاف ہے. جی 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 جی. جیسے حضور کے صدقے طفیل میں کہہ دیا، پھر یہ کہنا کہ خواجہ غریب نواز کے وسیلے سے وہ غلط ہو جائے. جی جی جی. اللہ کے رسول کے نام کے بعد پھر کسی کا نام نہیں لیا جائے گا. جی جی جی. جس کے واسطے دینا پہلے دے دو، بعد میں حضور کے صدقے طفیل میں اللہ ہماری دعا کو قبول فرمائے. جی جی. ایک امام تھا وہ حضور کے صدقے طفیل میں کہنے کے بعد پھر بزرگ کا نام لینے لگا. میں نے اس کو کہا کہ میں کہ حضور کے وسیلے کے بعد پھر کسی کا وسیلہ نہیں لیا جائے گا. جی جی جی. ادب سے خلاف بھی ہے حضرت. پہلے دے دو جس کے واسطے. جی جی جی. نہیں اب بریلویت لڑکھڑا چکی ہے. اور یہ اشرفیہ والے دیکھنا کچھ دن بعد ان کو یہ لوگ گھوشت کر دیں گے کہ یہ نہیں ہے، سنی نہیں ہے. ہو سکتا ہے کیا کہیں گے. پہلے تو اس کے بارے میں تھوڑا شک ظاہر کریں گے، پھر دھیرے دھیرے کہیں گے نہیں بائی کاٹ ہے. جی حضرت آواز ٹکرا رہی ہے، کہیں بات ہو رہی کیا؟ نہیں وہ تو یہ کرکٹ میچ ہو رہا قریب میں گراؤنڈ میں. اچھا. دروازہ بند کر دیتا ہوں. اب آ رہی ہوگی. جی اب آئی نہیں، اب نہیں آ رہی ہے. ہاں وہ دروازہ کھلا تھا، کرکٹ میچ ہو رہا تھا قریب میں. جی حضرت دیکھیے ایک چیز ہے، مطلب کہ معذرت کے ساتھ، جو اصل سنی ہے ان کو لوگ سنی مانتے نہیں. اصلی سنی وہی ہے جیسے لوگ سنی نہ مانے. ہاں. اور جو سنی نہیں ہے ان کو سنی مانا جا رہا ہے. نہیں اصلی سنی کون ہے معلوم ہے؟ جی اصلی آدمی کی پہچان بتاؤں میں آپ کو.
जी जी बताइए हजरत। जिसकी देवबंदी भी बुराई करे और जिसकी बरेलवी भी बुराई करे, समझ लो कि वही असली सही आलिम है। सही आलिम। दोनों तबके के आलिम जिसकी बुराई करें, समझ लो कि अल्लाह वाला, ये सीधी सीधी बात करने वाला, लाग लपेट वाला नहीं, ना इनकी रखता है ना उनकी रखता है। जी जी। जैसे हजरत अल्लामा गुलाम रसूल सईदी रहमतुल्लाह अलैह जी, उनको दोनों पक्ष उनकी थोड़े मुखालिफ हैं उनके। जी जी। अल्लामा गुलाम रसूल सईदी रहमतुल्लाह अलैह के जी 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 जी। अल्लामा ताहिरुल काजी है, इनके भी दोनों ही पक्ष मुखालिफ हैं। जी जी, दोनों खिलाफ हैं जी। अल्लामा पीर करमचंद हरी रहमतुल्लाह अलैह हैं, उनके भी। जी जी जी। तो जिनके दोनों पक्ष खिलाफ हो, थोड़े बहुत समझ लो कि वही हक है, हम तो उसी की बात करना है जी। ये भी जरूरी है कि क्योंकि एक पक्ष को लेके आदमी क्या है, वो उसकी गलत बातों को मानना पड़ता है फिर। जी। जैसे आप बीजेपी में हो जाएंगे तो फिर आपको कितनी बड़ा वो पद दे दें, छोटा दे दें, बड़ा दे दें, फिर आपको वो हजम करना पड़ेगी बीजेपी की बातें। जी जी। या कांग्रेस का पद दे तो फिर आपको कांग्रेस की गलत बातें हजम करना पड़ेंगी। जी। इसलिए हमें किसी पार्टी से ताल्लुक ही नहीं रखना, बस मुसलमान समझना, जो गलती है तो उसे गलती मानना है बस। जी जी। क्योंकि देवबंद बरेली के अगर एक तरफ हम हो जाए ना तो फिर इनकी हर गलत बात मानो था जी। तो फिर क़यामत में हम क्या जवाब देंगे? फिर हमारा तो दीन ईमान जो है कि फिर अगर इन मौलवियों के ऊपर आ गया तो फिर हमारा क्या होगा क़यामत में? जी 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 जी। तो पहले अल्लाह रसूल को ही मानेंगे, क्या है कोई भी आलिम ने कोई किताब लिखी हो, अगर गलत है तो उसे गलत ही मानेंगे। जी जी। लाग लपेट करके उसको सही करके नहीं बताएंगे। जी जी। जैसे देवबंद बरेली वाले दोनों अपने अपने आलिमों की बहुत सी कुछ बातें गलत हैं, दोनों ही तरफ है। जी जी, अरे दोनों गलत तरफ है है तो जी। क्यों उसमें लाग लपेट कर रखे तो कि हमें जवाब नहीं देना, जिसने लिखा वो जाने, खत्म बात। जी 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 जी। अब वो या तो फिर या तो ये माना जाए कि भाई इंसान है, गलती सबसे होती है, ये इसी भी बात कह नहीं। सकते हैं कि देखो हम इस बारे में बहस नहीं करेंगे, ये हमें रिवायत हमें सही नजर नहीं आती है। बहरहाल हम उनको गलत काफिर नहीं कहेंगे, इसलिए कि दुनिया से गए, हमने पूछा नहीं है। जी जी जी। इतना तो आदमी कर सकता है ना। नहीं सही बात लेकिन है। अब उनकी बात को सही करके बताना तो ये तो ईमान के बर्बाद होने की भी दलील है। गलत लिख के गए कुछ, अपन उसे सही करके बताना जी जी जी। है क्या नहीं? जी जी। जैसे वो ख्याल वाली बात है ना, वो सिरात मुस्तकीम में जो लिख के गए जी। इस्माइल देहलवी साहिब। जी 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 जी। अब ये देवबंद वाले आदमी उसको भी सही करके बताते। जी जी जी। मेरी बहस हो गई, कई आदमियों की बहस हुई इसमें। जी जी जी। मुफ्ती अब्दुल खालिक साहब जो देवबंद में पढ़ाते ना, जी जी। उनसे भी बहस हुई और भी बड़े बड़े आलिमों से हुई, जी। लेकिन कोई माकूल जवाब नहीं दे पाते। जी जी जी। कहते हैं हाँ ख्याल नहीं लाना चाहिए, तो अरे भाई वो मोमिन ही कैसा जिसके दिल में अल्लाह रसूल का हर वक्त ख्याल नहीं देता हो। जी जी। आना चाहिए लाना चाहिए तो बात दूर की है, मोमिन के दिल में तो हर वक्त अल्लाह रसूल का ख्याल रहता है। जी जी जी। ये लाने वाली बात क्यों कर रहे हो कि हुजूर का ख्याल नमाज में नहीं लाना चाहिए? ऐसे कौन लाके नमाज पढ़ता है? जी जी। कभी आपने सुना कोई बरेलवी हो कोई भी हो क्या वो नमाज ऐसे पढ़ता है कि हुजूर का ख्याल बना के नमाज पढ़ता? नहीं। जब देखा ही नहीं अल्लाह के रसूल को तो ख्याल कैसे बनाएगा? जी जी। सुनाई तो है ना? नहीं सही बात। सुनाई तो है ना। तो अब ऐसे इल्जाम लगाना कि वो इसलिए लिखा है कि हुजूर का ख्याल लाएंगे तो ऐसा हो जाएगा, नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। मैं तो ये कहता हूँ हर मुसलमान अल्लाह ही के लिए नमाज पढ़ता है, बेशक क्या है देवबंदी हो, क्या है बरेलवी हो, क्या है हदीस हो, क्या है किसी भी गुमराह फिरके का हो, कोई भी हो। सही बात। यहाँ तक कि गुमराह फिरके का आदमी भी, कादियानी को भी अगर अपन देखेंगे तो वो भी अल्लाह ही के लिए नमाज पढ़ता है। जी जी। कादियानी जबकि सबके नजदीक काफिर है। जी जी। लेकिन अगर उससे पूछेंगे नमाज कैसे पढ़ते, तो वही अल्लाह ही के लिए पढ़ते हैं नमाज। जी जी। वो भी यही कहेगा अल्लाह ही के लिए पढ़ी जाती है नमाज। वो भी कादियानी के लिए नहीं पढ़ता नमाज। सही बात। तो अब ये ख्याल वाली बात को दुरुस्त करके बताना और सही करना, मैंने इसमें बहस किया। मैंने कहा अच्छा बताओ कि हमने अल्लाह के रसूल को नहीं देखा, साहबा ने देखा है, तो साहबा की नमाज का क्या हुआ ये बताओ पहले। जी। साहबा ने तो हुजूर की क़िरात सुनी है, हुजूर को देखा भी है, नमाज पढ़ी है, तो उनकी नमाजें क्या हुई फिर? कि अगर यही किताब को सही माना, सिरात मुस्तकीम को, हर बात को, तो 150 साल पहले छपी है, इससे पहले 1250 साल वाली नमाजों की क्या हुआ हाल? उनकी नमाजें नहीं हुई। नहीं फिर मैंने इससे कहा मैं कि इसकी भी तबलीग करते हैं, फिर घर घर जाके इसकी भी तबलीग करोगे, भाई तुम कैसे नमाज पढ़ते हो, क्या करते हो? जी जी। ख्याल कहाँ से खत्म करवा दोगे अल्लाह के रसूल? खास देखिए हजरत मैं जानता हूँ किसी भी चीज में बहुत शिद्दत नहीं रखना चाहिए। जैसे अभी मैं खास तो हुजूर के ख्याल से कोई भी मुसलमान नमाज नहीं पढ़ता।
सब अल्लाह ही अल्लाह के रसूल के तरीका तो है ना। हुजूर ने फरमाया नमाज ऐसे पढ़ो जैसे मुझे पढ़ते देखा, तो तरीका तो अल्लाह के रसूल ने बताया। अब एक आलिम देवबंद से फायदे से मेरी बहस हुई, मैं क्या अच्छा बताओ कि जब हम 4 उंगल दूर खड़े होते हैं तो क्यों खड़े होते हैं? सुन्नत की वजह से ना। हाथ कानों तक उठा के नियत बांधते हैं, क्यों? सुन्नत की वजह से। अब अगर ख्याल खत्म करवाना है तो फिर ये सब बातें बंद करवाना पड़ेंगी। तो दुरूद शरीफ पढ़ेंगे तो हम ख्याल कहाँ ले जाएंगे बताइए आप? कैसे ख्याल खत्म कर सकते हैं? अस्सलाम वालेकुम या नबी, दुरूद शरीफ। और सबसे बड़ी बात तो सहाबा किराम की आती है कि उन्होंने तो हुजूर के पीछे नमाज पढ़ी है, तो उनकी नमाज का क्या हुआ? उन्होंने तो हुजूर को देखा, किरात सुनी, तो उनसे सहाबा किराम की बात, सहाबा किराम के बारे में जवाब दे लो। जी। क्या ख्याल है? नहीं, सही बात है। मैं कहता हूँ इन बातों को सही क्यों करके बता रहा हूँ? कह दो कि भाई जिसने लिखा वो जाने, हमें इसका जवाब नहीं दे पाएंगे। सही बात। भले ही उनको गलत ना कहे, लेकिन ये कह दे इस इबारत को हम नहीं मानते, तो बिल्कुल जाहिर ही गलत होगी। बिल्कुल नहीं, सही बात है। और पहली बात, गलतियां तो बड़े बड़े आलिमों से हुई, उनसे पहले भी बहुत। चाहे थानवी साहब हो या फाजिल बरेलवी हो, हाँ जी, इनको हम आलिम मानते हैं दोनों को, और ये मानते हैं कि दोनों से गलतियां हुई हैं। दोनों से गलतियां हुई, सही बात है। गलतियों को हम सही करके बताएं तो फिर तो हमारा ईमान ही खत्म है। फिर जी। फिर हम मुसलमान ही नहीं है इसका मतलब। अब अल्लाह रसूल की हम परवाह नहीं कर रहे, इन दोनों की परवाह कर रहे हैं। अब हम इन दोनों की परवाह कर रहे हैं कि जो जो लिख के गए उसे हम सही करके बता रहे हैं। अरे आप ही की हजरत बात पे एक बात याद आ गई। अभी एक कौन मौलाना तकरीर कर रहे थे, जैसे वो अपनी तरफ मुखातिब होकर कह रहे थे कि हमारा जैसे मतलब रंडी खाने में मर जाए, और मतलब कि उनका पीलीभीत वाला मुनीबुर रहमान। मैं कहा कि बताइए ये लोग आलिम है कि जाहिल है? बताइए। हाँ बिल्कुल। हम लोग कम पढ़े लिखे लोग भी समझ जाते कि ये जो है बकवास कर रहा है। अब देखो इंडिया में जर्मनी का जब आदमी आ गया ना, फ्रांस का, जर्मनी का, ये जापान का, तो उसे 5 बार मुसलमान होना पड़ेगा। जी हजरत बताइए कैसे? एक बार देवबंदियों में जाकर वहाँ मुसलमान होगा, फिर बरेलवी कहेंगे कि भाई कहाँ पर गए थे तुम के देवबंदियों में? अरे वो तो मुसलमान नहीं है, चलो कलमा दोबारा पढ़ो तुम 2 बार। अहले हदीस कहेंगे अरे दोनों ही मुसलमान नहीं है, देवबंदी बरेलवी, चलो अब अहले हदीस तो दोनों को मुसलमान नहीं, दोनों को मुसलमान 3। अब एक वो हो जाएगा जमात इस्लामी 4, एक हो जाएंगे शिया। शिया में खैर अच्छी बात ये मानता हूँ मैं कि शिया किसी को काफिर नहीं मानता है। शिया की एक बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ आपको। जी। देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस सबको शिया मुसलमान ही मानता है, जबकि चारों फिरके शिया को मुसलमान नहीं मानते। मुसलमान लेकिन शिया में कितनी बड़ी अच्छाई है कि आप चले जाओ तो आपका इस्तेकबाल करेगा, देवबंदी आए तो उसका इस्तेकबाल करेगा। जी। अभी आप अजमेर शरीफ चले जाओ, वहाँ शिया हैं लेकिन आप सबका इस्तेकबाल करते हैं। जी। तो मैं तो ये उनकी अच्छाई मानता हूँ शिया हजरात की। और शिया को भी हम काफिर नहीं कह सकते जब तक कि वो कुरान का इनकार न कर दे। जी भाई, जब तक हम सुनेंगे नहीं कैसे कर सकते हैं? बताइए। वो जो उनमें 40 पारे मानते हैं ना, उसको शिया भी मुसलमान नहीं मानते। उस फिरके वालों को, शिया में 32 फिरके हैं। अच्छा 32 फिरके? 32 फिरके बड़े पीर साहब ने लिखा है। हाँ, गुलतुत तालवीन में है। तो अब उसकी क्वालिटी देखना पड़ेगी ना, किस किस्म का शिया। ऐसे थोड़ी हमारे को काफिर कह दें। नहीं। अब जो अजमेर शरीफ के शिया हैं, ये बहुत से इनमें सहाबा किराम को ही मानते हैं। जी। और बहुत से नहीं भी मानते, दोनों तरह के हैं। जी। तो अब ऐसे काफिर नहीं कहा जाएगा। भाई ये गुमराह कह सकते हैं कि अगर सहाबा की शान में गुस्ताखी कर रहे हैं तो गुमराह कहेंगे। बिल्कुल। नहीं, बड़े बड़े उलमा के फैसले हैं इस बारे में भी कि काफिर जब ही कहा जाएगा जब वो नमाज का इनकार करे, रोजे का, ज़कात का, हज का, 30 पारे न माने, अल्लाह के रसूल को आखिरी नबी न माने। जी। शिया अल्लाह के रसूल को आखिरी नबी मानते हैं, सब मानते। जी। कलमा वही जो हम पढ़ते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। जी। और वो जो वसीम रजवी का बाइकाट किया है शियाओं ने, आलिमों ने भी किया, तो शिया के आलिमों ने भी यही कहा कि हम वही कुरान मानते हैं जो मौजूद है 30 पारों की शक्ल में। जी। तो ऐसे शिया को काफिर कैसे कह सकते हैं? सही बात। अरे गुमराह कह सकते हैं ज्यादा, अगर साहबा की शान गुस्ताखी कर रहा है तो गुमराह कहेंगे। काफिर का मामला तो बहुत भारी है साहब। जी। यजीद को बरेली वाले काफिर नहीं कहते, यजीद को नहीं कहते, और देवबंद वालों को एकदम काफिर कहते हैं। तो एक से बात हुई में कि यजीद को तो काफिर कहते नहीं जिसने इतना बड़ा जुल्म करा, और देवबंद वालों को एकदम उठाया मुंह काफिर कहते हैं। तो देवबंद वालों ने ऐसा कौन सा जुल्म किया है? अच्छा तो ये एक चीज है हजरत की, जो मतलब कि जैसे हमारे बरेली तबके में है, जो अहमद खान ने कह दिया उसको बड़ा मतलब मजबूती से पकड़ लिए हैं एकदम। वो तो आप उनको तो ऐसा मान रहे हैं कि जैसे अल्लाह रसूल को मानते हैं ऐसे ही बरेली वालों को मानते हैं। हाँ, वही देख लीजिए, मतलब कि ये तो मतलब कि छुपी चीज नहीं है।
नहीं मानता तो मैं भी हूँ, लेकिन मैं नहीं, मैं इस तरह से नहीं मानता। मैं गलती को गलती मानते हैं, जो गलती की है वैसे गलती मानते हैं जी। लेकिन जो उन्होंने लिखा कुछ वैसे, जैसे कब्र में शैतान आता है बहकाने, अरे बहुत सी चीजें लिखी, एक बहुत दो सारी। नहीं अब के। हाँ, लेकिन उसकी अब बात करने से कोई फायदा नहीं है ना। अच्छा, कई बार मैंने यूट्यूब में चैलेंज दिया है, जी नंबर दे दे के चैलेंज दिया है, 4 जगहें बताई हैं कि अजमेर शरीफ बजाओ या जी कलियत शरीफ बजाओ, भोपाल में रायसेन जी में पीर फतेहुल्लाह साहब के मज़ार वहाँ जाओ। 4 जगहें बता के चैलेंज दिया मैंने कई बार, जी। ऑल वर्ल्ड चैलेंज जी दिया है मैंने कि आ जाओ और सामने बैठ के बात साबित करो कि काबे का इमाम मुसलमान नहीं। जी जी। इस बात पर मैं कई बार चैलेंज दे चुका हूँ, लेकिन आते ही नहीं सामने। अच्छा, बेवकूफी पहले उनकी देख लीजिए हजरत। भाई काबे का जैसे इमाम कैसे, नऊज बिल्लाह मिन ज़ालिक, जो 50 लाख हाजियों की नमाज पढ़ाए और जिसमें आम आदमी नहीं होते, बड़े बड़े आलिम होते, दुनिया के आलिम आते। जी अगर कोई आलिम, मान लो दुनिया भर के आलिम आते, कोई गलत बात देखती तो वो भी तो ऑब्जेक्शन करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वो भी पूरी दुनिया से आते हैं। पूरी दुनिया से आते हैं, बड़े पूरी बड़े दुनिया आलिम से आते हैं, छोटे मोटे नहीं जी, आते। शेखुल हदीस, मुफ्ती, मुहक्किक सभी तो जाते हैं हज करने, सब आते हैं, सब सही पढ़ते बात है, सही। हैं। 1% हक है नहीं बात। पढ़ते, 99% सब नमाज पढ़ते हैं। जी जी जी। जैसे उन्हें 50 लाख हाजी आता है ना, उसमें 49,90,000 लोग नमाज पढ़ते हैं। बस 10,000 इंडिया के हैं जो बहका देते हैं, वो नहीं पढ़ते। बाकी 49,90,000 लोग नमाज पढ़ते हैं। उसमें वली सही। भी होते हैं, कुतुब भी होते हैं, अब्दाल भी होते हैं, सब के सब नमाज पढ़ते हैं। जी जी। और हजरत ये बहुत पॉइंट की बात है। क्या? ये जो अभी पूरी दुनिया के जो शेखुल हदीस मुफ्तियान पूरी दुनिया का इकराम आते हैं। शेखुल हदीस, बड़े से बड़ा मुहद्दिस जिसने सैकड़ों जी जी किताबें लिखी हैं, वो बड़े से बड़ा कारी, दुनिया के बड़े से बड़े कारी, उनके पीछे नमाज पढ़ते हैं। जी जी जी, ये बहुत पॉइंट की चीज है। और आप सुनना, किसी से भी मैं ये एक खास बात बता रहा हूँ जी कि दुनिया के जितने भी कारियों ने अभी तक नमाज पढ़ी, कोई एक कारी लिया दुनिया में से जिसने कहा हो कि काबे के इमाम ने ये आयत सही नहीं पढ़ी। जी जी। ये तो अब दुनिया के जितने कारी आते हैं सब पढ़ते हैं, कभी कोई गलती निकालता है कि उसने ये आयत सही नहीं पढ़ी, अब तक नहीं सुना गया। जबकि एक से कारी नमाज पढ़ते हैं जाकर के। और यहाँ इंडिया जी का तो, इंडिया में भी कारी बहुत है, जी जी और पाकिस्तान में, जामे मिस्र में कारी, पूरी दुनिया के कारी आके नमाज पढ़ते हैं उसके पीछे। जी जी। वो ऐसे कारी इमाम होते हैं कि पहले उनकी मश्क देखी जाती है कि कैसे पढ़ते हैं कुरान। जी यार अब समझो, खाने काबा का इमाम बनाना है तो कैसे बना देंगे? अच्छा, आपके मुबारकपुर में आप जामे मस्जिद में कैसे इमाम बना दोगे छोटे मोटे आलिम को? बहुत मुश्किल बात है सर, नहीं बना पाओगे। कोई तो अब सवाल ही जब नहीं। मस्जिद नबवी का इमाम, खाने काबा का इमाम जब बनेगा तो कितना बड़ा आलिम होता होगा। जी उसको एक एक हदीस मालूम होती है, एक एक तफसीर आयत की मालूम होती है, एक एक आयत कैसे पढ़ी जाती है उसका सबका पूरा उनको प्रैक्टिस होती है। जी। यानी बहुत छानबीन करके इमाम बनाते हैं, ऐसे ऐसे इमाम नहीं बना सकते वो खाने काबा का मस्जिद नबवी। जरा भी कमी सही हुई बात। तो, और जरा भी अगर कुरान याद नहीं है, यानी कमी है थोड़ी बहुत भी, तो उसको भी इमाम नहीं बनाएंगे। बहुत पक्का याद जी होना चाहिए कुरान, कभी गलती ना है। जी जी जी। अच्छा, कभी आपने सुना कि कोई ने कहा कि इमाम ने ये आज लुकमा दिया इमाम को, खाने काबा के इमाम को पीछे देखो, किसी ने कभी सुना आपने? कभी नहीं सुना। कितना पक्का कुरान याद होता है, कितना अच्छा कुरान पढ़ते हैं कि सुनते रहो। अच्छा, और कभी आपने सुना कि कभी हाजी ने बताया कि साहब आज हमने वहाँ नमाज पढ़ी थी मक्के शरीफ में तो इमाम सहू हो गया था? कभी सहू का सुना? नहीं नहीं नहीं। सजदा सहू ही नहीं होता उनको, कितना ध्यान से नमाज पढ़ाते हैं वो लोग। जी जी जी। अरे हम जहाँ नमाज पढ़ते हैं हमारे वतन में, तो उसे तो बार बार सजदा सहू करता है, यानी कितनी बार तो हम देख चुके, सजदा सहू करता है। हजरत तो कुरान पढ़ते हैं, बड़ी तड़प से पढ़ते हैं। रोने लग जाते हैं, ऐसा भी सुना है कि जी जी, इमाम बहुत तड़प से पढ़ते हैं। और दुनिया में ऐसा कुरान पढ़ने वाले कमी है जैसे खाना काबा का इमाम पढ़ता है, मस्जिद नबवी का इमाम पढ़ता है। जी जी। यानी पूरी दुनिया से सिलेक्टेड होते हैं, छानबीन की जाती है, वो उसको इमाम चुनते हैं, किरात में माहिर हो और जी, जी। उसको वो बदन के अंदर कोई बीमारी ना हो, गैस पास की बीमारी ना हो या कोई और बीमारी ना हो, खून की कतरे की या टपकने की या पेशाब के कतरे की, किसी किस्म की बीमारी ना हो। जी जी। ऐसा इमाम बनाएंगे क्या हर किसी को? समझ लो आप, सही बात है। क्या ख्याल है? पूरी दुनिया के वली आके नमाज पढ़ते हैं उनके पीछे, पूरी दुनिया के वली, कुतुब, अब्दाल, गौस, कलंदर सब नमाज पढ़ते हैं। सही बात है। और मैंने तो ये भी सुना है कि वो गुस्ल करके नमाज पढ़ाते हैं, वहाँ के इमाम गुस्ल करके। जी 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 जी। और एक इमाम थोड़ी है, कम से कम 20 इमाम होंगे। जी जी। जैसे शनिचर के अलग, इतवार के अलग, पीर के अलग, फिर जोहर का अलग, मगरिब का अलग। तो समझ लो कितना वो पाबंदी करना पड़ती है उनको। अरे हजरत वहाँ सहाबा इकराम की औलादें हैं, साहब बताइए। इकराम की औलादें, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की औलाद, इमाम हसन अलैहिस्सलाम की औलाद, तो इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम भी वहीं पैदा होंगे।
जी जी, अब सब काफिर हैं तो बताइए कि कितनी मतलब नहीं, की इन बरेली के फतवे के हिसाब से तो उनकी निकाह भी नहीं हो रहा है मक्के शरीफ मदीना शरीफ वालों के जो रह रहे हैं। नहीं, बड़े खतरनाक है ना। और दूसरी बात, अगर ऐसा देखा जाए तो फलस्तीन के जो मुजाहिद लड़ रहे हैं वो भी इनके हिसाब से अब मुसलमान नहीं है, बरेली के हिसाब से नहीं, वो एक ही इनके नारा हिसाब से लगाते तो हैं, है ही नहीं। नहीं वो एक जी, ही नारा लगाते हैं, नारे तकबीर। तमाम बड़े बड़े उलमा नहीं देवबंद वो वहाँ को मिलने फिलिस्तीन गए। वालों का गौर किया, वो नारे तकबीर लगाते हैं अल्लाह अकबर बस। अल्लाह, बस वही और मैं कह उनके रहा हूँ। हिसाब से बरेली के हिसाब से फिलिस्तीन वाले मुसलमान नहीं है, इसलिए कि नारे तकबीर लगाते हैं। और दूसरी बात, अल्लाह अभी अकबर तक का नारा, उस्मानी और साहब जब भी तक वो गए थे। नारा रिसालत नहीं लगाएंगे बरेली वाले उनको मुसलमान नहीं मानेंगे। लेकिन फिर भी उनके लिए दुआ कर रहे हैं। अब ये दुआ करके तो ये खुद तजदीद ईमान करें, निकाह करें, बरेली वाले क्यों दुआ कर रहे हैं जब वो नारा। सही बात है, सही बात। और खाने मस्जिद मक्के शरीफ मदीना शरीफ में जितने लोग रहते हैं ना, बरेली के फतवे से किसी का निकाह ही नहीं हुआ, इनके फतवे से निकाह नहीं हुआ किसी का भी। अब बताइए, यानी सब नाजायज हरामी है। इनके फतवे तो ऐसे ही है ना कि वहाँ पर गवाह होना, मुसलमान होना शर्त है, निकाह पढ़ाने वाला, चलो हिंदू निकाह पढ़ाने वाले को तो फाजिल भाई ने लिखा कि हिंदू भी पढ़ा सकता है, बामन भी पढ़ा सकता है, लेकिन गवाह तो मुसलमान होना चाहिए ना। फिर वहाँ कौन गवाह बनता है? खाने मक्का में सब वही गवाह बनते हैं आपस में, और सब जिनको देवबंदी वहाबी कहते हैं वही आपस में शादियां करते थे। इनके हिसाब से तो निकाह ही नहीं हो रहा है फिर किसी के, निकाह ये नहीं हुआ। सही बात। कुरान की औलादों के निकाह नहीं हो रहा है, सैयदों के भी निकाह नहीं हो रहा है, जो सैयद है ना उनके भी निकाह नहीं हो रहा है बरेली के, उनके भी नहीं हो रहे। सही बात। जबकि असली सैयद वहाँ मौजूद है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की। बेशक बेशक, इसमें कोई शक जब नहीं। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम वहीं पैदा होंगे तो समझ लो कितना प्योर खानदान वहाँ मौजूद है, प्योर। बेशक, यानी कितना पावरफुल खानदान होगा कि उसी खानदान में मेहदी अलैहिस्सलाम पैदा होंगे, वहीं तो पैदा होंगे। जी जी, अरब शरीफ में है कि नहीं? जी सही बात। मक्का शरीफ या मदीना शरीफ में दोनों जगह में से कहीं एक जगह ही तो पैदा होंगे। जी जी। अब वो कितना आला खानदान है जहाँ पैदा होंगे, तो बरेली वालों के साथ में मुसलमान नहीं है वो खानदान भी। मैं कह रहा हूँ आपसे, हजरत बहुत पॉइंट की बात है। मैं कह रहा हूँ आपसे, मुसलमान नहीं है वो। तो ये कह देते हैं, बेवकूफ बनाने को कहते हैं कि वहाँ सुन्नी बहुत है, इनसे कहते हैं चलो हम तुम्हें 2-2 लाख रुपया देंगे, पूरे मक्का शरीफ मदीना शरीफ में 40 लाख की आबादी में अगर तुम 40 घर बता दोगे ना, 40 घर, तो हम तुम्हारे गुलाम बन जाएंगे और 2-2 लाख रुपए तुमको देंगे, और टिकट का किराया भी हम देंगे आने जाने का, उम्रे का। चलो हमारे पास 40 घर बताओ मक्का शरीफ में जो तुम्हारे हिसाब से मुसलमान हो, वहाँ पर सुन्नी हो। ये खाली वहाँ पे जाकर कहते या गौसल मदद उतनी, वो मुशरिक का फतवा लगा देंगे। जिनको 40 घर भी बताएंगे ना तो वो भी नहीं निकल पाएंगे 40 घर, वो भी इनको लानत मलामत करके भगाएंगे, निकलो यहाँ से, कहा क्या पीली बता रहा हूँ हमें, हम तुम्हारे जैसे सुन्नी नहीं, हम तो मुसलमान सुन्नी है, कट्टर सुन्नी। सुन्नी तो है, सुन्नी तो सभी है वहाँ पर, पूरे के पूरे मक्का शरीफ मदीना शरीफ में सबके सब सुन्नी है। बेशक बेशक। लेकिन बरेली के हिसाब से वो मुसलमान ही नहीं होते। ये तो धोखा देने के लिए कहते हैं वो सुन्नी बहुत है। कौन से सुन्नी है? चलो हमारे साथ चल के बताओ तो, वो मुझे लेके चलो या इरशाद साहब को लेके चलो। आप जैसे जब जाएंगे समझदार, जैसे आपको भी लेके चले जाएंगे तो आप भी छानबीन करके खालो दे दोगे। अरे हजरत, मैं तो वहाँ रहा हूँ, मैं कुल जानता हूँ। आप अगर आप चले जाओगे तो आप तो खालू दड़ोगे बाल की एक ही खाल। ये इन्हें तुम कहाँ से सुन्नी बता रहे हो? चलो जैसे हम पूछते हैं खाने काबा के इमाम को क्या मानते हैं, जिन्हें आप सुन्नी बता रहे हो, मस्जिद नबवी के इमाम को क्या मानते हैं, वो क्या मानते हैं? मतलब क्या हुआ कि साहब मोमिन है कि काफिर? तो इतना कहने में चाटा ना मार दो, ये भगाना थे कि ये क्या मतलब है आप पूछने का? क्या इनके बारे में शक कर रहे हो तुम लोग? इनके बारे में हम बताएं कि मोमिन है? अरे नाराज हो सकते हैं वहाँ के लोग, हो सकते हैं कि नहीं? जी जी। हो सकता है बरेलियों को उठा के पटक दें इतना पूछने पे कि साहब इन्हें क्या मानते हो सकता है उठा के पटक दे गुस्से के अंदर, वो पटक देंगे कि नहीं? सही बात है। अरे गुस्सा नहीं आएगा कि खाने काबा के इमाम, मस्जिद नबवी के इमाम के बारे में पूछा कि इन्हें क्या मानते हो, मुसलमान या क्या मानते हो? अरे हजरत, ये अपने इमाम का नाम वहाँ बताएंगे, मक्का मदीना और फलस्तीन में जहाँ भी बताएंगे, वो तो जनबा नहीं करते कि इमाम अहमद रजा खान हैं कौन। नहीं जानते कोई। जामिया अज़हर मिस्र वाले भी नहीं मानते, मैं तक़ियाबादी करके पढ़ते हैं लोग, देवबंदी बन के पढ़ते हैं जामिया अज़हर मिस्र में, उन्हीं के पीछे नमाज पढ़ते हैं, उनका जबीहा खाते हैं, और ये कभी बताता नहीं। मैंने इतनी ऑडियो में बोल दिया जामिया अज़हर के बारे में, आज तक बरेलियों से एक भी ऑडियो नहीं डली कि जामिया अज़हर वाले हम जैसे बरेलवी हैं। ये सोच रहे हैं एक ऑडियो डाल दी तो जामिया अज़हर वाले सुन के इसका रद्द कर देंगे, तो भेज देंगे तो हमारा पोल पट्टा खुल जाएगा पूरा। समझ गया ना? जी जी। इसलिए मेरी एक भी ऑडियो का आज तक इन्होंने जवाब नहीं दिया ऑडियो में। वो सोच रहे हैं जामिया अज़हर वाले सुन लेंगे, फिर वहाँ का जवाब आ जाएगा तो हमारी पोल पट्टी खुल जाएगी पूरी। गाली आपको दे सकते हैं हजरत, जवाब नहीं देंगे, कयामत तक नहीं दे पाएंगे जवाब ये लोग। मैंने कभी ये भी नहीं कहता देवबंदी बनो, ना मैं कहता बरेलवी बनो, ना मैं कहता अहले बनो, मुसलमान बनो। मुसलमान अल्लाह ने फरमाया वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, न मरो तुम मगर मुसलमान बनो।
न मरो तुम मगर मुसलमान बन गए। कुरान में इन्नल मुमिनीन वल मुमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात, कुरान में तवफ़नी मुस्लिमों व अलहिक़नी बिस्सालिहीन, या अल्लाह हमें मौत दे तो मुसलमान बनाकर और हमारा हश्र नेक लोगों के साथ फरमा। कुरान में या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदख़ुलू फ़िस्सिल्म काफ़ा, ए ईमान वालों इस्लाम में मुकम्मल दाखिल हो जाओ। हम तो ये पैगाम देते हैं कि 150 साल पहले के आलिमों की किताबें पढ़ लो, बस फैसला खुद ब खुद तुम ही कर लो। मैं तो ये भी नहीं कहता कि उनकी पढ़ो उनकी पढ़ो उनकी पढ़ो, किसी की भी पढ़ो। 150 साल पहले की तारीख देख लो, उससे हाथ देवबंदी ने भी नहीं लगाया, ना बरेलवी ने, ना अहले हदीस ने। उस किताब में किसी ने इंटरफेयर नहीं किया, ना हाशिया चढ़ाया। बस उस किताब को आप पढ़ लो, क्या ख्याल है? सही बात है। जैसे इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-शानी रहमतुल्लाह अलैह, शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह, शाह वली अल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह, शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह, क्या ख्याल है? हक है बात। अरे मैं बताऊं, बहुत बड़ा प्लानिंग चल रही है, प्रोपेगेंडा, कि पूरी दुनिया में बस आला हजरत को मनवाना है, बाकी सबको छुपाना है। ये प्लानिंग चल रही है बहुत बड़ी, इनका बस नहीं चल रहा। ये तो खाने काबा का खिलाफ पकड़ के कहे मसलक आला हजरत जिंदाबाद, मसलक आला हजरत जिंदाबाद। अरे इनका बस चल जाएगा ना, खाने काबा का खिलाफ चारों कोनों से पकड़ के, एक इधर से कहेगा मसलक आला हजरत जिंदाबाद, एक इधर से कहे मसलक आला, इनका बस नहीं चलता वो तो। अरे हजरत ये तो सिर्फ नारेबाज हैं। हमारे यहाँ कहावत है कि नारेबाज, इनसे आज तक तो इनके उलमा में एक मुजाहिद नहीं पैदा हुए। हुकूमत मिल जाए ना वहाँ मक्का शरीफ में, तो ये खाने काबा के गिलाफों की तरफ भी लिखवा देंगे मसलक आला हजरत, मस्जिद नबवी के एक एक मेहराब पे लिखवा देंगे मसलक आला हजरत जिंदाबाद। हाँ लिखवा सकते हैं, इनका कोई भरोसा नहीं। और ये टर्की हुकूमत को समझना, टर्की हुकूमत हमारी है, इनकी नहीं है टर्की हुकूमत। टर्की हुकूमत वाले इनको मानते ही नहीं है, मानते ही नहीं है। सही बात। वहाँ सब देवबंद वाले जाते हैं, सज्जाद रोमानी साहब, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब, मुफ्ती लियाक़त घुम्मन साहब, हज़रत मौलाना सैयद सुलेमान नदवी साहब, ये सलमान, ये सब देवबंद वाले उलमा जाते हैं। जी जी जी। अभी ये देखिए ना, फलस्तीन के जो मुजाहिदीन हैं, मिलने कौन गया था? यहाँ हमारे हिंदुस्तान से ये कौन थे? वो नारे तकबीर के अलावा दूसरा नारा ही नहीं लगाते, तो वो सुन्नी कहाँ से है, मुसलमान कहाँ से है? बरेली के साथ मुसलमान ही नहीं है, फिलिस्तीन वाले नहीं है मुसलमान। बरेली मैं कह रहा हूँ आपसे, इनके फतवे से नहीं है, ये तो जबरदस्ती मुसलमान यूँ मानना है कि इन्हें अपनी जान बचाना है। समझ लें बात? जी जी जी। और मैंने कितने बार चैलेंज दे दिया कि कुरान का हाफिज 1400 साल में न काफिर हुआ है, न कयामत तक हुआ। वो तो लिया मेरे से लेके जा 2 लाख रुपए लेके, मैं तो नंबर बता चुका हूँ कई बार, 88 152 53 598। पहले मैं सुनूंगा और 2 लाख रुपए मुझसे लेके जा, कोई काफिर को लाओ, मुश्रिक को लाओ। अब ये कहेंगे देवबंदी को हम मोमिन मानते हैं, बरेलवी को ही हम मुसलमान मानते हैं, हम तो अहले हदीस को ही मुसलमान मानते हैं। उनमें से लाओ जिसको कलमा नहीं पढ़ा हो, जो काफिर कहलाता हो, ईसाई यहूदी कहलाता हो, ले आओ, पूरी दुनिया में से कहीं से भी ले आओ और 2 लाख रुपए मुझसे लेके जाओ। मैं कह रहा हूँ पूरे कुरान की तो बहुत बड़ी बात है, एक पारा भी सही से नहीं याद कर सकता गैर मुस्लिम जी, मखारिज से पढ़ ही नहीं सकता सही से वो, जब तक मुसलमान नहीं हो जाएगा। अजी हजरत अब तो इनकी हवा उखड़ गई जब ये मौलाना सलमान अजहरी साहब जेल गए। अरे ये जेल से क्यों नहीं निकल रहा है? ये यागूस मदद कह रहे हैं कि नहीं कह रहे हैं वहाँ पर? वही मैं कह रहा हूँ कि इससे पहले उलमाए देवबंद जा रहे थे तो ये लोग कहते थे कि दुनिया में भी इनको अल्लाह ने जो लानत बरसाई है। फाजिल बरेलवी लिखा है कि जब कोई किसी नबी का वास्ता दे पुकारे तो वो नबी या रसूल या वली तशरीफ लाते हैं। हाँ बेशक, ये अकीदे में से इनके है। तो ये सलमान अकीदे में मालूम क्या किया क्या नहीं किया, अल्लाह बेहतर जाने। चलो मैं फिर बात कर लूंगा, जरा हमारे मामू आए हुए हैं, मामू के लड़के। जी जी हजरत आप करिए, लेकिन एक बताइए हजरत, बस 1 मिनट। वो कारी अबूजर साहब के लिए जो है कोई रमजान महीने में मतलब की तरावी पढ़ाने की उधर उस क्षेत्र में है क्या मस्जिद? चलो मैं बात करूंगा, अभी जरा सुबह बात कर लूंगा जल्दी। ठीक है, ठीक डलवा दो सिंगल पे। बेशक आप डलवा सकते हैं हजरत। चलो ठीक है, जज़ाकल्लाह सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।